Hey everyone, hi, thank you so much for watching today's video। आज के वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ हाउ टू क्रिएट दिस लुक। तो इस लुक को मैंने क्रिसमस के लिए क्रिएट किया है एंड क्रिसमस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल्स ऑफ द ईयर। तो लेट मी नो आप लोगों को ये लुक कैसा लग रहा है एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप आप लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि इस लुक को रिक्रिएट करने के लिए। सो इफ़ यू रिक्रिएट प्लीज़ लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम। सो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते। First I'm taking a makeup wipes and with the help of this I'm going to clean my face. So this will help me to get rid of all the dirt, oil and excess makeup or anything sitting on my skin and give me a clear and clean canvas to work with. Next I'm going to do a bit of skincare. I have taken a toner. Toner will help you to balance your skin pH and also this will make you fill out all the pores that you have on the skin. And next I'm taking a serum. So during winter time skincare is a must before makeup because it tends to get very cakey. So this is a serum by Innisfree and this provides lots and lots of hydration to our face. Next I'm taking my favorite moisturizer. This is the Innisfree green tea seed cream. I love this cream because this provides a lot of hydration and moisturization to your face and prevents your makeup from getting cakey. I totally recommend this product. And also if you don't have this one you can use your favorite moisturizer that is appropriate for the winters. Next I'm going to use a primer. This is the Lakme Absolute Blur Perfect Primer. So this has been a favorite of mine since a long time, so I really love using this product. So this will fill in my pores and give me a smooth texture to work with. Next I'm going to do color correction. For that I have taken a color corrector from Forever 52 and this is such a nice product. So color correction has so many benefits. When you are doing makeup for a long time and you have uneven spots and hyperpigmentation that your foundation cannot cover, color correction is very useful in that situation. So as you guys can see, I have a lot of hyperpigmentation around my mouth and so many pimple spots around my face, so I'm going to hide that. Next I'm going to take a loose powder. This is by Sugar and I'm going to set the color correction in place. Otherwise when we apply foundation our color correction will mix with that and give an orange tint. Next I'm taking my recent favorite foundation. This is the Mabylline Fitme. I am in the shade 238 and I'm going to apply this with the help of a flat shader brush and spread this across my face. And इससे क्या होता है, आपके फेस को बहुत ही इवनली एक कवरेज मिलता है। तो फर्स्ट आपको इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है एंड देन आप एक कब्यूकी ब्रश लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। द कब्यूकी ब्रश आई एम यूजिंग इज़ बाय पैक कॉस्मेटिक्स एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई फाउंडेशन ऑन योर नेक क्योंकि आपके फेस को और नेक को एक सिमिलर कलर में रखना है। आफ्टर आई एम डन विद दैट मैं एक ब्यूटी स्पंज लेके मैं उस फाउंडेशन को एक और अच्छा सा ब्लेंड कर लूँगी। नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई लिक्विड लिपस्टिक और उसको लेके मैं अपने चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ एंड सेम ब्रश जिससे मैंने फाउंडेशन ब्लेंड किया था उससे ही मैं ब्लेंड कर लूँगी। नाउ आई एम गोइंग टू डू अ लिटिल बिट ऑफ हाईलाइटिंग ऑन माई फेस। एज यू गाइज कैन सी मेरे फेस में ज़्यादा कुछ डार्क सर्कल्स नहीं है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ इट इन द एरियाज वेयर आई वुड यूजुअली हाईलाइट एंड मैं यही सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे फाउंडेशन का थोड़ा सा रेसिड्यू रहेगा एंड ये हेल्प करेगा दोनों प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सेट माई फेस विद लैक्मे 925 कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इसके मदद से मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी। एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ ब्लश बाय शुगर। ये शुगर का ब्लश मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट आई एम डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ ब्रॉन्जिंग टू माई फेस क्योंकि मुझे कॉन्टोरिंग इतना अच्छा नहीं लगता। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द आइस मेकअप। आइस मेकअप के लिए मैंने चूज़ किया है ये ग्रीन सा आईलाइनर जिसका ट्यूटोरियल मैं शेयर करने वाली हूँ। अभी मैंने लिया है यहाँ पे पैक कॉस्मेटिक्स का ब्राउ पोमेड
एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे लिया है एक एंगुलर ब्रश। इससे मैं अपने आईब्रोज के शेप को मुझे ड्रॉ करना है। नेवर यू आर ड्रॉइंग योर आईब्रोज, मेक श्योर कि दोनों तरफ इक्वली दिखे, दोनों तरफ एक जैसा हो। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। अभी मैं ले रही हूँ एक स्पूली, एंड स्पूली लेके मैं आईब्रोज के जो पोमेड था उसको अच्छे से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। एंड नेक्स्ट आई एम टेकिंग अ ब्लैक आई शेडो, और उसको मैं अपने आउटर एंड पे लगाऊंगी आईब्रोज के। इससे आईब्रोज बहुत ही डार्क एंड इंटेंसिफाइड दिखते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ कंसीलर। कंसीलर से मैं अपने आईलिड्स को मैं अप्लाई कर दूंगी बिफोर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ आई मेकअप। फॉर आईलाइनर आई एम टेकिंग अ ग्रीन लाइनर, दिस इज़ बाय शुगर। ये आईलाइनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज दिस इज़ अ डीप ग्रीन। ये एक बहुत ही वेरिएबल सा कलर है। Although it is green but it is not as bright as compared to other greens। तो यहाँ पे मैं आईलाइनर ड्रॉ करना सिखा रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट अपने आईलिड के शेप को फॉलो किया, एंड उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आउटर साइड पे थोड़ा थिक किया एंड इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा नीचे किया। तो ऐसे ही आपको करना है, एंड आउटर वी के तरफ से एक वी शेप करके ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग द कलर्ड काजल, दिस इज़ बाय ब्लू हेवन। एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। एंड ब्लू हेवन का ये प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल होने के साथ साथ एक नॉन ड्राइंग फार्मूला है, तो ये ड्राई नहीं करेगा आपके आईज़ को। एंड नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग अ हाईलाइटर, दिस इज़ बाय वेट एंड वाइल्ड। नाउ इट्स टाइम टू डू आवर लिप्स। यहाँ पे मैं लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ, जो कि मुझे मेकअप स्टार्ट करने से पहले अप्लाई करना चाहिए था, बट राइट नाउ आई एम अप्लाइंग। और लिप बाम को 5 मिनट बाद आपको उसको रिमूव कर देना है। एंड नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मेरे पास है क्रिम्सन सोल, दिस इज़ सच अ नाइस लिपस्टिक बाय लैक्मे, और ये आपको बहुत सारा डिस्काउंट में मिल जाएगा फ्रॉम नायका, पर्पल। ये यूजुअली 50% डिस्काउंट में होता है, एंड दिस इज़ सच अ नाइस प्रोडक्ट, आई स्वेयर बाय इट। एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश में यूज़ करती हूँ। मुझे जहाँ जहाँ हाइलाइटिंग चाहिए मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैं लिप्स को ग्लॉसी बनाने के लिए आई एम अप्लाइंग अ लिप ग्लॉस। अभी मैं पूरे मेकअप को सेट कर दूँगी using a setting spray। So this is my final look. I hope you guys enjoyed watching my tutorial. Thank you so much for watching। अपने friends and family के साथ share कर देना मेरे videos को। Thank you।